Hello, guys. What's up? We are the Hi. couple unfiltered, and my name is Khadija, and here my husband Faraz. So, I hope you all are doing well. All right. So, today we are going to discuss about something you all know it is all in trend these days. Exactly. Yes, and we all are obsessed with the show. Yeah, You been obsessed. Yes, you have already got the guess. Yes, I'm right. So today we are going to discuss about the Big Boss. Or we call it big loss because Big loss. we loses our precious time while watching it. Yes, But I still love it. It's worth the it's time amazing. losing. Initially, I wasn't aware about this Big Boss. Actually, I know that this is a Big Boss and all, but I was not much interested in seeing this. But once I got married, he was the one who recommended me, and now I'm all hooked to Yeah. this show. Following it since 2006 when the first season arrived, hosted by none other than Arshad Varsi. Okay, गफूर भाई हमारे. I'm not aware about it at all. अरे पूरा हिस्ट्री पता है. So I've already watched one season. Once I got married, that is Munawwar Faruqi's season. That was season 17, I Yes. think. Yes. Yes. So Faraz, you tell me what's your thoughts about this season 17 first. First we will discuss about season 17, but later on we will continue, okay, with this. So season 17 was the torture टॉर्चर चेम्बर फॉर मुनव्वर फारूकी. Oh मतलब द yes. होल सीजन उसी के बारे में था ऐसा फील हुआ. मतलब देयर वाज अ टाइम आई वाज लाइक मुनव्वर फारूकी को निकाल दो इस शो से बिकॉज ही वाज लिटरली बीइंग बैटर्ड विद गॉड नोज व्हाट हिज पर्सनल लाइफ हिज किड हु वाज आई थिंक 5 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. Yeah. मतलब कुछ नहीं छोड़ा. एंड आई एम नॉट अ ह्यूज फैन ऑफ मुनव्वर फारूकी. अच्छे करता है जोक्स बट दैट मेड मी हिज फैन कि हाउ ही struggled and still by the last few weeks he was just going out all out. मतलब रोस्टिंग करना मुंह पे बोलना लड़ना because by the end I thought he was like कि अब तो fuck it. अब तो इतना तो बेइज्जत हो गए अब क्या ही बेइज्जत होंगे. मतलब जो shitty remarks थे which were delivered by Ankita and Vicky. I still remember अंकिता तो मुझे बहुत पसंद थी लेकिन उसकी Ankita actually. मतलब initially I was like कि नहीं ये बहुत अच्छी है, उसका nature इतना ज्यादा caring and all, but suddenly she turned herself. उसकी जब वो है ना मदर इन लॉ मदर इन लॉ उसी के बाद ही खराब हुआ. मदर इन लॉ बट जो जिसकी पर्सनालिटी होती है वो रहती है, बट उसने वो फेक थी. इनिशियली वो फेक थी, वो मे बी, और फिर सडनली वो चेंज हुई है. उन लोग की जो फाइटिंग्स हुई हैं, ओ गॉड, आई स्टिल रिमेम्बर, वो बहुत खराब फाइटिंग्स थी दोनों की. और फ्रस्ट्रेटेड है हस्बैंड एंड वाइफ. ये मैं नहीं कर पाऊंगा लेकिन नहीं शो में दोनों फ्रस्ट्रेटेड लग रहे थे. एग्जैक्टली. फिर जो उसके जो शिटी रिमार्क्स थे मुनव्वर फारूकी पर, मनारा पर, मतलब बहुत ज्यादा हो गया. तो क्यों चले जाते हो आप जो है आप आपस में बोलो. फैमिली पर क्यों जाते हो, किसी की सिस्टर्स पर. चलो आए ठीक है, मुनव्वर फारूकी की 3-4 मेरे ख्याल से जो भी था, बट आप उनकी फैमिली पर क्यों जा रहे हो. बाहर की बातें नहीं करना चाहिए. हिज चॉइस. बट बिग बॉस नहीं उस चीजों को उठा लेता काइंड ऑफ. वही उसकी एक्स को या एक्स थी करंट थी पता नहीं. कल्प्रिट आयशा पता नहीं आयशा का तो क्या आई थी. सच में गलत हुआ हो हमें पता नहीं है. गलत अगर हुआ था तो फिर उसने आकर मुनव्वर फारूकी से ये सब बातें क्यों करी. उसको तो इग्नोर करना चाहिए था. एक्सपोजर के लिए बहुत फॉलोअर्स बढ़ गई इंस्टाग्राम. इंटेंशन था, वो एक्सपोजर था एक्चुअली. एग्जैक्टली. तो सबने एक दूसरे को यूज किया एक्चुअली. सभी ने किया है बट या इट वाज अ फन सीजन. नॉट द बेस्ट but it was a good season. So let me I was thinking of giving this small brief about the Big Boss and its evolution कि कैसे Big Boss है बोला. तो फोन उठा दिया मेरा. so मैंने थोड़ा रिसर्च किया था इसके बारे में and so as I already said कि season 1 was hosted by none other than Arshad Varsi. I still remember those ads on Sony TV because season 1 was on Sony TV. Okay. Yes. At that time Sony TV had the rights
and the first contestant was few contestant I remember, still remember, there was Amit Saad who was, मतलब हम लोग चाह रहे थे वो जीते, लेकिन वो कुछ हरकतों की वजह से अब क्लियर नहीं है, मैं नाइन्थ में था तब की बात है ये, बट स्टिल अमित साध वॉज द कूल गाय. देन देयर वाज रवि किशन, आई वाज अ ह्यूज फैन, मतलब जिंदगी झंड बा फिर भी घमंड बा उसी सीजन से आया. ओके या ओके. आज तक लोग बोलते हैं हम लोग. एंड देन बट हु वन? राहुल रॉय. he didn't did a single thing in that. राहुल रॉय. लिटरली अरशद वारसी ऐसा बोलता था कि वो हाथ बांध के पीछे टहलता रहता था. और लेकिन पहले सीजन का ये भी प्रॉब्लम था, पहले सीजन में उल्टी वोटिंग होती थी. अच्छा. जैसे अब होती है आप सेव करने के लिए वोट करें, हाँ. पहले के 1 से 2 सीजन में ये हुआ है कि आपको जिसे निकालना है उसके लिए वोट अच्छा. करें. तो लिटरली रवि किशन ने ये बोला था जब एलिमिनेट हुआ था, रवि किशन टॉप 2 में गया था, जब टॉप 3 में गया था, तो जब रवि किशन निकला उसने कहा मुझे लगता है मेरे फैंस कंफ्यूज हो गए, उन्हें लगा कि मुझे जिताने के लिए वोट करना है, और उन्होंने मुझे इतना वोट किया कि अब मैं एलिमिनेट हो गया. उल्टा था पहला सीजन, आई स्टिल रिमेम्बर. उसके बाद आई थिंक उसके बाद एज फार एज आई रिमेम्बर, हाँ सीजन टू फिर कलर्स पे आया था. अच्छा. क्योंकि उस 2006 के बाद 2007 में कोई बिग बॉस नहीं आया. ओ. या और सीधा 2008 के अक्टूबर में एज आई कैन सी हियर फिर आया था. उसे शिल्पा शेट्टी ने होस्ट किया, क्योंकि शिल्पा शेट्टी यूके में बिग ब्रदर जो इसका ओरिजिनल है, अच्छा. बिग बॉस बिग एंडमॉल वालों, बिग बॉस जो है वो ओरिजिनली इंस्पायर्ड बोलेंगे, इंस्पायर्ड नहीं, ऑफिशियल है, ऑफिशियल इंडियन वर्जन है बिग ब्रदर का. ओके ओके. और शिल्पा शेट्टी जीती नहीं थी बिग ब्रदर, बट शी वाज वन ऑफ द मेन कंटेस्टेंट, मतलब इंडिया से पहली बार कोई गया था वहां. और उस सीजन में क्या नाम है उसका, उस सीजन में आशुतोष कौशिक नाम का एक बंदा जीता था जो रोडीज जीत चुका था, जहां तक मुझे याद है उसको. तो ये बिग ब्रदर का से यस इंस्पायर्ड है बिग बॉस. यस, बिग ब्रदर का ही एक इंडियन वर्जन. ओ. मतलब बिग ब्रदर यूएसए में बिग ब्रदर चलता है, जैसे कि अमेरिका में बोलते हैं कि बिग ब्रदर इज वाचिंग यू, ओके. मतलब काइंड ऑफ एक टर्म है, बोलते हैं गवर्नमेंट इज वाचिंग यू. हाँ. ओके ओके हाँ, ओके. तो ये टर्म यूज करता है, सेम यूके में भी यही टर्म काइंड ऑफ यूज किया जाता है. और एक ऑल्सो नॉवेल है जॉर्ज ऑरवेल नाम की, जॉर्ज ऑरवेल ऑथर है उस नॉवेल के, 1983 आई थिंक नाम है उस नॉवेल का. यस, मतलब वन ऑफ द फर्स्ट डिस्टोपियन बेस्ड नॉवेल्स में से एक है, वन ऑफ द फर्स्ट नहीं बोलेंगे, वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल. लेकिन उसमें हिस्ट्री स्टोरी ये है कि एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो काइंड ऑफ एक कंट्री या फिर पूरे दुनिया पे राज कर रही है, और उसी में स्लोगन है बिग ब्रदर इज वाचिंग यू. ओ. कि मतलब आप कुछ भी, कैमरा हर जगह लगा हुआ है, आप कुछ भी खुद से नहीं कर सकते. उसमें मेन कास्ट जो मेन बंदा है उसकी स्टोरी ये है कि शुरू में वो गवर्नमेंट के साथ में काम कर रहा होता है, काइंड ऑफ एक कंपनी या फिर ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते थे, और वो रूल्स फॉलो कर रहा है, जी रहा है. फिर उसका इनकाउंटर रेबल से होता है, जो रेबेलियंस है, जो गवर्नमेंट के खिलाफ जा रही हैं, और फिर उसकी पूरी लाइफ टर्न अराउंड हो जाती है. मैंने पढ़ी नहीं है वो बुक, लेकिन बेसिक समरी यही है. तो उसी से इंस्पायर्ड बिग ब्रदर चालू हुआ. वो इतना सक्सेसफुल हुआ कि उसके शायद दुनिया में 20-25 वर्जन है इस शो के, गॉड नोस, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है. लेकिन उसी दौरान इंडिया में 2006 में पहला सीजन आया, सेकंड सीजन शिल्पा शेट्टी एज आई टोल्ड यू, एंड थर्ड सीजन वाज वन ऑफ द मोस्ट फेमस सीजन आई वुड से. अमिताभ बच्चन ने होस्ट किया था. उसमें केआरके था. ओके. यस, उसमें केआरके था, और गालियां जो दी थी केआरके, राजू श्रीवास्तव, केआरके, मतलब बहुत बड़ी पावरफुल, उसमें काफी पावरफुल लोग आए थे. और बख्तियार ईरानी करके था, वो हम लोग का फेवरेट था, मेरा और मेरे भाई का फेवरेट कंटेस्टेंट था, इवन मेरे पापा को भी वही पसंद था. और उसको क्या हुआ, मतलब एक कॉन्स्पिरेसी है, मैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी बोलूंगा, यही सच है झूठ है पता नहीं, कि अमिताभ बच्चन जो है ना, वो बिंदु दारा सिंह जीता था वो सीजन. अच्छा. तो बिंदु दारा सिंह के जो फादर हैं, ग्रेट दारा सिंह, वो बहुत बड़े अपने जमाने के लेजेंड और पहलवान भी हैं, कई रिकॉर्ड्स हैं, और उन्होंने अमिताभ बच्चन के फादर का रोल प्ले किया, मर्द. वो मतलब फैमिली जैसे लोग बोलते हैं कि बिंदु दारा सिंह को बचपन से देखा अमिताभ बच्चन ने. तो लोग ये कहते हैं कि यही कहते हैं कि विंदु दारा सिंह को जिताया, क्योंकि बख्तियार और विंदु दारा सिंह टॉप 2 में गए थे, ऑलमोस्ट टॉप 2 में गए थे. तो बख्तियार को ऑप्शन मिला था कि आप क्या नाम है उसका, आप 10 लाख रुपए लेके निकल जाओ घर से, या फाइनल, और अगर आप नहीं जीते तो आपको कुछ नहीं मिलेगा,
ओह और अभी अभी आप निकल जाओगे तो आप 10 लाख रुपए लेके निकल जाओगे। अब मुझे पता नहीं, बख्तियार का खुद का डिसीजन था, शो मेकर्स ने उसे फोर्स किया तो वो 10 लाख लेके निकल गया। और जब और वो बाहर आ गया तो अमिताभ बच्चन ने बोला आपने डिसीजन गलत लिया, आप टॉप 2 में जाने वाले थे। हाँ, चलो ठीक है, वो तो एक अब भी कॉन्स्पिरेसी होता है थ्योरीज ऐसा। है। अब भी होती हैं चीजें कई सारी, लेकिन नहीं, बाइस तो अभी लेकिन भी ये है। उस टाइम काफी ओपनली बायस सामने आ गया था। और उसके बाद एज यू ऑल नो, भाई आए सीजन 4 से। भाई ने स्टार्ट किया होस्टिंग बिग बॉस 2010 में, जब भाई ने पहला सीजन होस्ट किया था। इट वाज इट वाज मतलब एट दैट टाइम भाई वाज ऑन इट्स पीक। वांटेड, दबंग, हम्म। रेडी, ये सब फिल्में आई हुई थी और मतलब आग लगी हुई। जब पता चला सलमान खान होस्ट कर रहा है तो बड़ी बात थी। सलमान खान होस्ट, क्योंकि इतना बड़ा स्टार शाहरुख खान के अलावा वही एक था जो इतना सलमान बड़ा होस्ट कर रहा था, क्योंकि यंग, उस टाइम सलमान खान 35-36 साल के थे, काफी यंग थे। 35-36 हम्म। नहीं बोलेंगे, 38 के आसपास एज थी। और बॉडीगार्ड आने वाली थी, मुझे याद है, या आ चुकी थी, ऐसे ही कुछ था। और हम लोग तो बहुत एक्साइटेड थे कि सलमान खान, वैसे ही हम लोग देखते थे और सलमान खान होस्ट कर। और फिर पहला सीजन शो, वो भाई के आने के बाद श्वेता तिवारी जो कसौटी जिंदगी की में लीड थी, ओ हाँ। उस सीजन में खली भी आया था। अच्छा। खली भी आया था। हाँ। और उसके बाद तो भाई ही होस्ट कर रहे हैं और उसमें सीजन 13 मुझे याद है जब इसमें सिद्धार्थ शुक्ला था। हाँ, वो तो That उस पे was- जाएंगे हम लोग, उस पे जाएंगे। लेकिन एक सीजन और है जिसकी मैं बात करना चाहता हूँ, सीजन 5। ये सलमान खान और संजय दत्त ने साथ में होस्ट किया था। वाओ। यस, क्योंकि सलमान खान उस दौरान शायद किसी मूवी की शूटिंग कर रहे थे, मुझे याद नहीं कौन सी मूवी की शूट कर रहे थे। तो सलमान खान ने संजय दत्त को ऐसा बोलते हैं कि सलमान खान संजय दत्त से बात की कि मैं पूरा सीजन होस्ट नहीं कर पाऊंगा और मुझे एक ऐसा बंदा चाहिए जो एंकर बने शो का। हम्म। और संजय दत्त और सलमान खान ने साथ में होस्ट किया था, तो मोस्टली संजय दत्त ही आता था। भाई महीने में 2 बार आते थे मैक्सिमम, बाकी टाइम संजय दत्त आता था। बहुत एंटरटेनिंग होगा। हाँ, उसमें एक स्काई करके बंदा था, तो संजय दत्त ने उसे कुछ डांटा तो उसने थोड़े उठ के चला गया बीच से। अच्छा। संजय दत्त बहुत कामली होस्ट किया था और वो नर्वस भी था, उसका पहला सीजन था। उसके बाद से उसने होस्ट नहीं किया, लेकिन इवन सलमान खान ही फर्स्ट सीजन में नर्वस थे, फिर वो ओवर द टाइम भाई अपने उसमें आ गए जलवे में। तो मुझे याद है उसके बाद जब सलमान खान आया, वो सलमान खान ने जो बैंड बजाई स्काई की, अच्छा। अंदर जाके बैंड बजाई थी घर के अंदर बाप रे। बैठ के, लगी तुम भाई विल वंस यू विल गो आउट ऑफ दिस हाउस, बाबा विल सी यू आउटसाइड। ये लिटरली सलमान खान नेशनल टेलीविजन में बोला है। और उसके बाद हर एपिसोड में स्काई शो के एंड में, बाबा यू लव मी ना, बाबा यू लव मी ना। ओह। यस, इट वाज सो हिलेरियस, मतलब मजा आ गया था, वो सीजन भी बहुत अच्छा था। एंड देन काफी सीजन गए, इतना कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ। एक वो सीजन 2 में राजा चौधरी नाम का ही बंदा आया था जो शिल्पा अच्छा। शेट्टी ने होस्ट किया था। हाँ। वो श्वेता तिवारी का एक्स हस्बैंड था। ओके। उस सीजन में बहुत बड़ा कांड हुआ था, उसके बाद से इन्होंने काफी चीजें चेंज की हैं। अच्छा। उस सीजन में जब फाइनल 3 या 4 लोग थे, ये लोग लास्ट वीक में, बिग बॉस का लास्ट वीक चल रहा है, ट्यूसडे या मंडे और वेडनेसडे का दिन था, ये लोग फांद के बाहर निकल गए। ओह माय गॉड। यस, हम लोग को दिखाया टीवी पे कि ये लोग चढ़ रहे हैं ऊपर और शो खत्म हो गया। ओह। नेक्स्ट डे, उस टाइम तो यूट्यूब इतना उसमें नहीं था, लेकिन न्यूज में आ गया था बकायदा। मुझे याद है जूम या E24 पे देखा था कि बकायदा बाहर गार्ड्स ने उन्हें पकड़ा, तीनों चारों को, और वापस अंदर किया। तो खाने का भी इशू हो रहा था, खाना वाना नहीं दिया था बिग बॉस, क्योंकि कोई लड़की बची नहीं थी और इन तीनों गधों को किसी को कुछ बनाना नहीं आता था, ओह। गधे थे। और लिटरली मतलब मुझे याद है कि बवाला मचा था। और फिर शिल्पा शेट्टी तो ऐसी एक हार्ड जज थी नहीं, थोड़ा बोला आके। उसके बाद से इन्होंने ये चीज चेंज की कि कम से कम 5 कंटेस्टेंट बच जाते हैं अच्छा। हर फाइनल सीजन, हर वीक में आते आते कम से कम, ताकि घर एकदम वीराना न लगने लगे। हाँ, इतना बड़ा घर है, बहुत बड़ा डर भी लगती होगी डर का अकेले पता आई नहीं, थिंक। लेकिन एक वो होता है ना कि शुरू में 17-18 लोग और फिर खट 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 खट, एकदम से सन्नाटा, फिर वो पहले हर हफ्ते कोई ना कोई और निकलता ही आप था ना। इतने महीनों से बंद हो एक ही जगह पर, दोस्ती हो जाती है यार, सही फैमिली। बात है, बहुत मुश्किल होता होगा। एग्जैक्टली। तो ऐसे काफी सारे सीजन गए, ऐसा कुछ एक्सट्रीम नहीं हुआ। फिर एक वाला सीजन आया जिसमें इमाम साहब आए थे। इमाम साहब ने, इमाम नाम था उनका। और क्या नाम है उसका, वो कौन से सीजन में था वो बंदा, आई थिंक इट वाज
लेट मी चेक। हाँ, शायद गौहर के सीजन में ही था वो। तो उसमें यही हुआ था कि इमाम नाम का एक बंदा था, वाइल्ड कार्ड बनकर आया था, शायद गौहर की सीजन में नहीं, तो उसमें वाइल्ड कार्ड बनकर आया था, तो वो बहुत अच्छी अच्छी हरकतें करता था, पूरी बॉडी में मेकअप लगा के एक हाँ। टास्क दिया बिग बॉस ने कि सब स्टैचू बन जाएंगे, स्टैचू नहीं, इमाम को सबको अवॉइड करना है, इमाम इनविंसिबल है, वो आपको अच्छा। कितना भी उकसाए, और अगर आप उस गए तो आपको शायद राशन छिन जाएगा या ऐसे कुछ टास्क था। और फिर जो उसने गंदी हरकतें की हाँ। भाई, बहुत बुरी हरकतें की, तो सलमान खान ने डांट थोड़ा समझाया, तो वो ऐसा करे टाइम आउट, ऐसा करके टाइम वो आउट, ये हमने देखी देखा होगी है, रील बहुत ट्रेंड, क्लिप वो क्लिप देखी सभी ने देखी। है। ओ भाई उसका पहली बार था उसका नाम ये इस तरीके से उसने जो जेस्चर किया था उसका था, 2 बार so उसने hilarious था तब वो, सलमान फर्स्ट टाइम सलमान सुनाया खान है। का ऐसा आउटबर्स्ट हुआ। नहीं, सलमान खान ने ऐसा फिर उसको सुनाया है। और एक बंदा एक सीजन में आया था, शायद पता नहीं किस सीजन में आया था, मुझे याद नहीं, वो बंदे को सलमान खान, वो मतलब डोंगरी से था वो बंदा भी, और बहुत गुंडई की बातें करता था और लड़कियों से बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करता था। तो सलमान खान ने बोला था, तुझे कुत्ता नहीं बनाया तो मेरा नाम सलमान खान नहीं। वो भी हमने रील देखी है। was too good। एंड देन मतलब फिर बिग बॉस माइल्डली चल रहा था बढ़िया, हम सबको मजा ही आ रहा था, एक्सक्यूज मी, और फिर वो ग्रेट सीजन आया, सीजन 13। यस, वो तो मुझे सिद्धार्थ शुक्ला की वजह से एक्चुअली याद है। 13, हाँ, सीजन सीजन 13 13। मतलब द वन मैन शो था वो, पूरा सिद्धार्थ शुक्ला के अराउंड ही था एक्चुअली वो। शुरू में नहीं था, शुरू में शो काफी अच्छा चल रहा था, इक्वली थे सब, सिद्धार्थ भी दिखता था, फिर जब उसकी उससे लड़ाई हुई, क्या नाम है उसका, क्या नाम है उसका कमॉन मैन वाले बंदे का, आसिम आसिम। रियाज, आसिम। आसिम रियाज से जब उसकी लड़ाई हुई, तब तो भाई दिमाग खराब हो गया, उसके बाद से इवन आसिम रियाज बहुत कट्टर टक्कर दी उसने, हाँ। मतलब अभी मुझे पता नहीं सच है झूठ है, केआर की बात पे भरोसा नहीं करता हूँ मैं, लेकिन उसका वीडियो जब उसने बना जीता था सिद्धार्थ, तो उसने वीडियो बनाया था कि असल में वोटिंग के हिसाब से ये जीता आसिम। आसिम, बट और सलमान खान भी खुश थे, बट चैनल हेड ने बोला नहीं हमें सिद्धार्थ, ये सच है झूठ है मुझे नहीं पता, मैं तो सिद्धार्थ को वोट दे रहा था भाई, मुझे तो पसंद था, मेरे पापा भी उसे पसंद करते थे, मेरी इवन मॉम को पसंद था वो, और उसी दौरान मेरे भाई की शादी थी, मुझे याद है, तो हम चारों कजिन्स, इवन शादी शादी से मतलब जो फंक्शंस हो रहे हैं, पूरा घर बड़ा पड़ा है, रात में लगाते थे 12 बजे बिग बॉस, वूट पे आता था, वूट ऐप थी पहले, जियो ऐप से पहले वूट ऐप थी, कलर्स की अपनी ऐप थी खुद की, तो उस पे आता था रात में, उसामा लगाता, उसामा हमारे छोटे भाई का नाम है, वो लगाता था, और सब बैठ के देख रहे मोबाइल में, 5 लोग मोबाइल में देख रहे हैं बिग बॉस, और जो हमारे कजिन्स हैं जिन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं है, जो लिटरली मजाक उड़ाते थे हम लोग का, उनको इतना इंटरेस्ट आ गया कि वो लोग बोलते थे यार लगाओ ना बिग बॉस, लगा नहीं, वो सिद्धार्थ शुक्ला की तो सडन डेथ भी हो गई, वो तो यार बहुत बहुत शॉकिंग, बहुत शॉकिंग था, बहुत शॉकिंग, मतलब जब मैंने सुना तो मुझे मतलब यकीन नहीं आ रहा था कि सही में ऐसा हुआ है। ही वॉज एब्सोल्युटली फाइन, मतलब उसका देखते थे स्टोरीज आती थी, सब आता था, सडनली उसकी डेथ हो गई। एग्जैक्टली, अच्छा उसमें हार्ट अटैक अब ये में भी यही कॉज बताया गया, एक उसकी जो सडन डेथ हुई थी, और उसमें कई कैरेक्टर्स की डेथ हुई है। एक और कौन थी वो, जो अब रिसेंटली उसकी डेथ हुई है अभी कुछ महीनों पहले, उसी सीजन 13 शेफाली, शेफाली, शेफाली। शेफाली, वो कांटा लगा, हाँ, उसकी डेथ हो गई। हाँ वो तो काफी यंग थी, कितनी 40 प्लस, वो भी 40 40 प्लस के थी, आसपास उतनी थी, एज नहीं थी उसकी। नहीं थी एज उसकी, और वो मतलब दैट शॉकिंग, वाज शॉकिंग और सिद्धार्थ एक्चुअली। वाज अ फिट गाय, हाँ कभी कभी ही वाज लगता था, एब्सोल्युटली फाइन, लेकिन ठीक है, सडनली उसकी डेथ हो गई। हाँ, और नहीं, हमने जो पढ़ा था आर्टिकल्स में कि वो 2 दिन पहले उसकी बात भी हुई, उसकी मॉम से भी बात हुई, सब कुछ हुआ एकदम से ये तो ऐसे ही होता है हमारी अनएक्सपेक्टेड। फैमिलीज में, नहीं बात हुई नेक्स्ट डे न्यूज है, एक और था वो सुशांत सिंह राजपूत, एग्जैक्टली, उसके लिए तो मैं रोई थी जब मुझे पता चला था रोया कि तो नहीं उसके था, लिए, मैं लेकिन रोई थी, मेरे आंखों बहुत आई ही आई बेहतरीन हैड एक्टर टीयर्स था, इन माय आईज व्हेन आई हर्ड अबाउट इट।
कि सुशांत उसने सिंह तो का तो उसका तो कुछ शॉकिंग था, शॉकिंग था। कंट्रोवर्सी है एक्चुअली उसका, क्योंकि इवन पता नहीं उसकी सुशांत डेथ कैसे तो हुई वो मैं है। डिस्कस नहीं करना चाहूंगा उसकी डेथ में वो एक चीज क्योंकि बहुत गलत हुई, जो उसके फोटोज आ गए थे, है पब्लिश हो गए थे, मीडिया दैट वालों का कोई वाज ईमान नहीं है, एब्सोल्युटली रॉन्ग पैथेटिक एक्चुअली। पैथेटिक, एटलीस्ट तुम डेड मतलब बॉडी को देयर ही इज नो छोड़ केडर, दो, नो एथिक्स, एटलीस्ट नो स्टैंड। डेड बॉडी को छोड़ दो। मतलब ये न्यूज़ चैनल वाले एक ह्यूमैनिटी गाली निकल होती रही है, है, बट नो नो जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी yeah, they'll do तुम anything, कर रहे they'll हो। go down to any any length, they'll scratch the bottom of the barrel for the दे news. जस्ट क्रॉस देयर बाउंड्रीज, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, दे कैन Indian डू media is in एनीथिंग। gutters, Indian media is in डिस्गस्टिंग gutters। एक्चुअली। चलो हम लोग गलत टेंजेंट पे चले गए। हाँ, ऑल्सो उसी दौरान जो मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग न्यूज लगी थी, चैडविक बोसमैन की डेथ, अच्छा। जो वकांडा फॉरएवर और हमारे ब्लैक पैंथर का रोल प्ले करता है एंड गेम, हाँ, मैंने देखा है। उसकी डेथ भी उसी दौरान हुई ओके। थी। 2000 सॉरी। 2021 में मोस्ट प्रोबेबली, जहां तक मुझे याद है उसकी डेथ हुई थी। और मतलब इट वाज शॉकिंग, उसमें मेरे आंसू आ गए थे कि यार ये बंदा अभी 3 साल पहले एंड गेम देख कर आए थे और लिटरली फ्यूचर लीडर होता वो एवेंजर्स का। ये था इस तरीके से सेट कर रहे थे, वो फ्यूचर लीडर था एवेंजर्स का। बट ठीक है, चलिए। आरआईपी हाँ, किंग। तो बैक टू बिग बॉस। बैक टू बिग सो बॉस सीजन नाउ विल 19। डिस्कस सीजन 19 या अब करंट सीजन की तरफ बात की जाए, बिकॉज आफ्टर सिद्धार्थ सीजन मैं बोलूंगा ये सीजन बहुत इंटरेस्टिंग जा रहा है। एंटरटेनिंग है एक्चुअली। हर कैरेक्टर मस्त है, अजीब अजीब लोग हैं। सब अपने कैरेक्टर्स बोलते हैं ना में, भाई, बोलते हैं ना ये जू है और यहाँ सब जंतु है। सबके अंदर टैलेंट है, सब अपने कैरेक्टर्स में, मतलब कोई ये नहीं कि कोई पीछे हो, कोई पीछे कोई नहीं, सब एक से बढ़कर एक है। हाँ, सब ये पीठ तो है। पीछे बात करते हैं, अपने ग्रुप वालों की बात हाँ, करते हैं। मतलब अच्छा ग्रुप का हम नहीं बोल सकते कि कोई ग्रुप प्रॉपर ग्रुप बना, उन लोग का प्रॉपर ग्रुप तो नहीं बना वो है। डेमोक्रेसी का खेल है ना इस बार, हाँ, तो वो नंबर गेम्स में रहना है। कैलकुलेटिव क्या हो रहा है फिलहाल फरहाना के साथ, क्या हो रहा है? फरहाना फरहाना के ना साथ इधर की है ना उधर की है, बेचारा ना, तो फंसी हुई है। वो ना इन्फोर्स कर पा रही है अपनी बातें, और एग्जैक्टली। ना ही वो कर पा रही है कि जो वो चाह रही कराना, क्योंकि उन्होंने वोट दिया है। वो दूसरी टीम में एक्चुअली दोस्त है वो स्नेहल। उस चीज को एहसान समझ रही है कि मुझे नहीं, फ्रेंड्स ने वोट दिया है, वो मैं मुझे कैप्टन बनाया है, तो ये उसका एहसान है। तो उसकी वजह से जो है, जो उसकी जो फ्रेंड्स है, वो इस चीज का एडवांटेज ले रहे हैं। एडवांटेज भी ले रहे हैं और लेना भी चाहिए भाई, they are उन्होंने not बनाया they are not इतना तो। conducting their duties actually, that नहीं, is कैप्टन wrong। बनाने का मकसद ही ये तो होता है ना कि आप हमें कुछ दोगे अगर हम वो बनाएंगे। एटलीस्ट आप अपने फ्रेंड्स, आपने अपने फ्रेंड्स अगर इतना ज्यादा फ्रेंड्स के लिए सोचते हो, तो ये तो सोचना चाहिए कि उसको सुनने को भी तो मिल रहा है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। फिर वही है ना कि जैसे फरहाना चिल्लाती थी अभिषेक की कैप्टनसी में कि अब वो लोग भी वही चिल्लाते हैं कि फेल्ड कैप्टनसी। बट अब अगेन हम लोग टेंशन में जा रहे हैं, सीजन 19 ने कंटेस्टेंट के एक करके थोड़ा तो फरहाना की एक्चुअली सबकी जबान बात नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो हमें लगते हैं कि हाँ ये हैं थोड़े कंटेस्टेंट। यू नो कि मेरे पास जो है, मैं दुबई जाती हूँ बकलावा खाने, आगरा जाती हूँ कॉफी पीने। गाइस मेरी वाइफ भी हाँ, लखनऊ ओन करती है, लखनऊ ओन करती हूँ मैं, और मुंबई योगी का जी घर आते रहते हैं। योगी जी मेरे घर आते हैं। मुंबई का आधा हिस्सा मैं ओन करती हूँ। अंबानी ने इन्हीं से लैंड रोवर और रेंज रोवर्स ली थी मेरी वाइफ से। कितनी कार होंगी? 2000 2000 कम से कम, मैक्सिमम 2000 होंगी। 500 तो हेलीकॉप्टर। हाँ, 500 हेलीकॉप्टर्स है, मेरा पर्सनल जेट भी है। जोक है ये, सीरियस ना लीजिए। बट हाँ, इट वाज हिलेरियस whenever she talks I just click the forward button, मतलब she grinds my gear that hard, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है जब वो बात करती। What the hell are you doing, my girl? मतलब you have to be out। मतलब she was like कि मैं दुबई जाती हूँ बकलावा खाने, मैं जो आगरा जाती हूँ चाय कॉफी पीने। 6,000-7,000 का टिकट है दुबई का। कि वो अभी सलमान खान से बोले थी कि मैं 27 साल तक घर से बाहर नहीं निकली हूँ, माई पेरेंट्स डजंट अलाउ मी एक्चुअली
उनके पेरेंट्स उनको 6 बजे के बाद अलाउ नहीं करते हैं, एंड शी इज टॉकिंग अबाउट दुबई एंड आगरा। आगरा में ताजमहल के पीछे जो गार्डन है, उनकी स्पेसिफिक, उस गार्डन का नाम है यमुना नाम का नाला। लिटरली बदबू आती है ताजमहल के पीछे, क्योंकि मैं 2 से 3 बार गया हूँ ताजमहल। जब ताजमहल के पीछे साइड जाओ तो स्मेल आती है वहाँ। अगर वहां बैठ के कोई कॉफी पी सकता है तो फिर है तो वो बिलियनर, बिलियनर तो है वो। सीरियसली इतना बोलो कि कितना इंसान का हालत सुन सके। Could you do this यार? मजा आता है। कंडीशनल वर्ड में हो मैं तो स्किप कर, मैं भी स्किप करती, मुझसे नहीं सुना, मुझे इतनी गुस्सा आती है उसकी जब वो अपनी राम कहानियां सुनाना शुरू करती है। मतलब वो अच्छी बात भी करती तो मुझे इरिटेशन होने लगता है। एग्जैक्टली, शी मे बी काइंड हार्टेड हो, मतलब शी इज, मतलब अमाल का, ज़ीशान का ख्याल, वेरी हेल्पफुल, केयरिंग, सब कुछ है, बट द मोमेंट शी ओपन्स her mouth, the me started telling or narrating her stories, then that is unacceptable, irritating. फिर एक हमारे आते हैं अमाल साहब तो दोगले हैं सीरियसली, एंड बहुत गलत चीज है ये, बहुत गलत चीज है। तुम, he doesn't have guts to speak in front of, सामने नहीं बोल पाता है, अंदर जाके चिल्लाएगा मार दूंगा फाड़ दूंगा, लेकिन सामने ना मारता है ना फाड़ता है। जिप, ऐसा क्या यार? अच्छा, अब के समय देखा है किसी के पास गट्स, सिर्फ हाँ एक बशीर है उसके पास गट्स, बशीर सामने से लड़ लेता है, बोल लेता, इवन नेहल लड़ लेती, भले से गलत मुद्दे उठा है लेकिन सामने से लड़ लेती। बहुत अब्यूजिव लैंग्वेज यूज करती है, बहुत डिमीन, नेहल अब्यूजिव, बहुत डिमीन करती है, बहुत डिमीन करती नेहल सबको, वो तो काम है बहुत ज्यादा उसका। वो अच्छे लोग नहीं आते। मृदुल का हाल क्या है? और मुझे, हाँ मुझे बहुत I like that guy a lot. I also do. I also. अगर वो जीत जाएगा तो मुझे बुरा नहीं लगेगा। Exactly. But और वो कुछ नहीं कर सकता, वो अच्छा है। He is very simple. अच्छा है। He is simple और innocent. प्रणीत ने एक बार जब भाई बहुत बैश करके गए थे, आवेश था उस दौरान, शायद प्रणीत ने इसी से बोला था, मृदुल से बोला था या गौरव से बोला था, मुझे याद नहीं, कि क्या करें यार, क्या ये इस घर में लगता है अच्छे लोग रह ही नहीं सकते, हम लोग क्या करें। सेम कैटेगरी। प्रणीत अच्छा कंटेस्टेंट है, वो हंसाता है, जब वो जोक अपने बोलने पर आता है तो अकेले अमाल बशीर से लड़ लिया था और दोनों की बैंड बजा दी। ये लोग जाजू जाजू कहते रहते हैं, बट आई हैव नो आइडिया व्हाट जाजू इज। बोलते बर्ड है, बट ही इज रियली गुड। मतलब जब वो फॉर्म में आता था, अब तो वो अभी पीछे नहीं हटता हो गया बिल्कुल। और जीके गौरव इज रियली मतलब क्लास जेंटलमैन, और he is the only one who maintain his dignity actually. yes he never मतलब goes, मतलब वो इतना गुस्से में आ जाता है कि उसके आंसू आ जाते हैं और वो रोक लेता है अपने आप। All the contestants has used abusive language अभी तक उसने तो नहीं, नीलम and नीलम ने भी दी हैं गालियां, लेकिन वो ऐसे नहीं देती, लड़ाई में नहीं, दोस्ती में मजाक में गालियां। एक्सेप्ट गौरव खन्ना इज रियली क्लासी गाय, एंड दैट्स गुड बिकॉज़ उसे काम करना है, उसे पता है वो एक शो में आया है, वो भूल के नहीं बैठा है कि वो शो में आया है। और एक बार अगर उसने इसमें डिग्निटी अपनी खराब कर ली ना, तो उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा बाहर आकर। ठीक है, हमारे डेफिनेट साहब ज़ीशान कादरी, एक लेगा ज़ीशान कादरी, तो यही बोलते रहते, देख लूंगा आजकल थोड़ा वही, जैसे कि किसने बोला था, शायद फरहाना ने बोला था, नहीं कुनिका जी ने बोला था कि तो बैठकें लगाए रहते हैं। सही बोला था, क्या मुझे दरबार अपना लगा के बैठते हैं। मुझे कुनिका बिल्कुल पसंद नहीं है, शी इज द वर्स्ट कंटेस्टेंट। तब एज है लेकिन वो बहुत बदतमीज लेडी हैं। एटलीस्ट अपने एज का ख्याल रखो यार। हाँ यार, मतलब थोड़ा तो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। इज्जत, सलमान खान ने जो कल बोला, बहुत सी, अपनी इज्जत अपने हाथों में होती है। एग्जैक्टली। और उसने अपनी रियली में उसने अपनी इज्जत खो दी है। मतलब आप भूल जाते हो क्या कर, हर चीज पे परवरिश, माँ बाप, तुम्हारे बहन, तुम्हारा भाई, इसके अलावा मुद्दा ही नहीं। मतलब मुझे तानिया नहीं पसंद, बट मुझे भी बुरा लगता है जब वो कहती है कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवरिश अच्छी नहीं की है। और अरे खाना बनाना नहीं आता किसी को तो खा थोड़ी जाओगे उसे, तुम्हारे माँ बाप ने सिखाया, अरे नहीं सिखाया,
someone's upbringing कि तुम्हारी परवरिश नहीं अच्छी हुई है, तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें परवरिश नहीं दी है, ये नहीं करा, वो नहीं करा, आप हो कौन? कोई नहीं। Who the hell are you? चलो नेक्स्ट कंटेस्टेंट पे जाते हैं। सुनीता इज नॉट नीलम का मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मतलब मुझे नहीं पता, इतना वो सुन भी लेती है और उसको, अच्छा नील, मुझे लगता है कि नीलम को है, पता है कि तान्या जो भी बोल रही है वो देख रही है, फेक है, बट स्टिल शी इज अराउंड अस, स्टिल वो उस चीज को, और मतलब विदाउट एनी रीजन शी हैड अ फाइट विद नेहल जस्ट बिकॉज ऑफ तान्या. When Nehal said कि your parents had served you in the plate and all, so नेहल को नहीं बोलनी चाहिए, ठीक है, but नीलम was there, she stood. लेकिन एक वो भी है, नीलम में अपने दोस्तों के लिए लड़ती तो है, दोस्तों की कोई भी उसका रीजन हो, लेकिन वो लड़ती जरूर. मुझे नहीं पता, बट मुझे लगता है कि वो इनोसेंट, इतनी इनोसेंट नहीं है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करती है, एग्जैक्टली एक्ट्रेस है, इतना इनोसेंट नहीं. मुझे लगता है कि कुछ तो मतलब उसे उम्मीद है कि तानिया कुछ जुगाड़ करेगी, जैसे वो अमाल को चढ़ाती है ना कि तुम्हारा स्टूडियो होगा, वहाँ ये लगा होगा, वहाँ लोग खड़े होंगे, तुम अमाल के गाने गा रहे होंगे. मुझे लगता है हो ना हो, मुझे नहीं पता बाहर तानिया का एग्जैक्टली क्या है, जो ऑनलाइन स्टोरीज हैं वो तो फेक ही बोल रहे हैं, और ऑब्वियसली उसके लिटिल गेट रेडी विद मी के वीडियोस हैं. क्या बात तुम एक रिप्रेजेंट कर रही हो इंडियन कल्चर को, तुम ये कह रही हो कि मैं साड़ी पहनती हूँ, मैं इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ, और तुम्हारी जो रील्स है उसमें शो होता है कि यू वेयर बिकनीज, यू वेयर मिनी स्कर्ट्स. बातें हैं, वो बिग बॉस के घर में अपने बबल में बैठी हुई है. वी आर नॉट द वंस हु जज, और हम ये नहीं कह रहे हैं व्हाटएवर दे वांट टू वेयर इट. We don't have any issue with this. डंके की चोट पे जो भी करो उस चीज को एक्सेप्ट करो. एग्जैक्टली. आप गलत रिप्रेजेंट, आप एक वेव चल रही था, आप उसी में बह गए, उसी में बह रहे. आपको पता है आजकल चल रही हैं चीजें, तो मैं भी यही कर लेता हूँ, हाथ धो लेता हूँ, तो दैट्स नॉट गुड. बट नेक्स्ट कंटेस्टेंट आई वुड लाइक टू टॉक फरहाना. राइट. फरहाना कभी कभी शो की हाईलाइट होती है. जब वो वाले रूम से बाहर आई थी तो शो की हाईलाइट बन गई थी कुछ टाइम के लिए. फरहाना का और उसकी बहुत अच्छा, हाँ वही मैं कहने जा रही थी. कीपर है, क्या है वो, पीस एक्टिविस्ट. उसे पीस की स्पेलिंग पूछनी चाहिए किसी को. मतलब जब तक मेरी एक टीचर थी, तो इकोनॉमिक्स टीचर थी, तो शी यूज्ड टू से डोंट जज द पर्सन अंटिल ही और शी ओपन्स देयर माउथ. ये तो सच बात है, ये सच है. सच बात. फरहाना बहुत अच्छी लगती है सब कुछ, द मोमेंट शी ओपन्स हर माउथ तब पता चलता है कि सारी शैतान चेहरे पे दिखने लगता है कि कुछ लोग तो डिजर्व भी करते हैं उसकी गालियां, बट वो बहुत ज्यादा नीचे चली जाती है. द वर्ड शी इज यूजिंग, जब लोग चाहते हैं कि हम उसे लाइक कर पाए, लेकिन फिर वो ऐसा कुछ बोलते तो बोलते ना, सीरियसली. अशनूर, हाँ वो अपनी डिग्निटी मेंटेन करे, क्लास है, बट स्टिल अशनूर का भी कोई गेम नहीं है, वो किसी के साथ इन्वॉल्व नहीं होती एक्सेप्ट प्रणीत और अभिषेक. वो सही है, ठीक है, आपका एक ग्रुप है, आपके 4 लोग हैं, लेकिन उसके अलावा भी तो कुछ करो. वो कुछ करती ही नहीं है, उसका कोई मुद्दा नहीं है, कोई लड़ाई नहीं है, ठीक है लड़ाई ना लड़ो. She stands for अभिषेक ओनली. अभिषेक की पीछे है, पीछे so, समझ में नहीं, मुझे नहीं समझ में आ रहा अशनू का क्या है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है. अभिषेक बहुत अच्छा, उसका अच्छा जा रहा है, मगर इधर कुछ ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंस हो गए हैं अभिषेक ओवर कॉन्फिडेंस हो गए, क्योंकि तारीफ भी भाई ने की थी बीच में आके, और उसके बाद वो सेव भी काफी मेजॉरिटी से हो रहा है. Last 2-3 days he was continuously कैप्टन भी बन गया था. Talking that अमाल को पोक करना, वो डैन्यूब में जाके वहाँ बैठ के खाना खाना, मैं हतिया, ये ऐसी क्या गुंडाई चल रही है. ऐसे ही लैंड ग्रैब किए जाते हैं. ग्रैब क्या किए जाते हैं वे, तू सारे गुंडा है क्या बिग बॉस है घर का. भाई बहुत हिलेरियस थी वो चीज. मतलब अभी अच्छा, अभी तक नहीं समझ में आ रहा है who's gonna win this. इस सीजन में अभी तक कोई ऐसा कंटेस्टेंट नहीं है जिसे मैं आउट एंड आउट बोलूं कि मैं चाहता हूँ ये चीज. चाहते हैं कि हाँ गौरव खन्ना मुझे पसंद है, चाह रहे हैं कि वो सामने आए, वो खेले अपना गेम, बट अब लोग कहते हैं कि उसकी क्लिप्स काट देते हैं. ये पता नहीं, अब हम लोग 24/7 नहीं देखते हैं, बट जो फॉलो कर रहे हैं
इंस्टा पे हो गया, फेसबुक पे हो गया, इवन ट्विटर पे हो गया, लोग कहते हैं कि जीके ने ये लड़ाई लड़ी, जीके ने ये मुद्दा सॉल्व कराया। अब पता नहीं कब कराया भाई, हम और तो अगर 1 घंटे का ही अगर देख उससे सकते हैं क्लिप्स तो काटी जा रही तो ये गलत दैट्स चीज रॉन्ग, है, दैट्स रॉन्ग। दैट्स इवन सलमान एब्सोल्युटली खान ने रॉन्ग। भी इस हफ्ते तारीफ की कि यू आर इम्प्रूविंग, मगर ये बट हमें नहीं दिख गलत रहा है चीज है। इम्प्रूविंग। बट मुझे नहीं दिखा कुछ इस हफ्ते, कुछ लास्ट वीक कुछ किया हो। एक बात तो है कि जो मेकर्स है वो बायस्ड हैं, बायस नहीं है, बायस होते नहीं, हैं। इस वक्त कोई बायस नहीं है। बायस थे वो कई सीजन में, हैं बायस हुए हैं कि ओपनली बोलना कि मैं चाहता हूँ ये जीत, लेकिन इस सीजन में बायस नहीं। इस सीजन में वो सिर्फ उन कंटेस्टेंट को चढ़ा रहे हैं जो कंटेंट दे रहे हैं, जैसे तानिया कुनिका। अगर तानिया कुनिका ये सब नॉमिनेट हो जाते तो उस वीक नॉमिनेशन कैंसिल, वो एलिमिनेशन ही कैंसिल कर देते हैं। हम्म। So hi guys, this portion has been re-recorded because our camera died on us. Sorry for that. यस। So we were discussing कि अगर कुनिका और ये लोग जो मेन प्लेयर्स हैं, जिन्हें इस बार बिग बॉस लिटरली पुश कर रहा है अपनी तरफ से, जैसे पुश क्या कर रहा है, झेल रहा है, क्योंकि हर कोई नहीं दे पा रहा उस लेवल का कंटेंट कंटेंट, दे रहे हैं ये लोग, जैसे कि तानिया मित्तल, कंटेंट दे कुनिका, रहे हैं, कुनिका है, अभिषेक तो अच्छा अभिषेक प्लेयर भी है, अच्छा प्लेयर है। बट वही है ना, इनको नहीं एक्सपोज। कुनिया की तो इस हफ्ते भाई ने काफी बोला, लेकिन फिर फाइनली भी उस लेवल पे नहीं बोला जिस लेवल पे बोलना चाहिए था, क्योंकि वो काफी रूडली सलमान वो खान से बात कर रही है। सबकी, हाँ वो सलमान खान से इतना रूड है, सेकेंडली वो सबकी अपब्रिंगिंग पर जा रही है सबको, तो दैट इज नॉट दैट्स एक्सेप्टेबल नॉट यार। एक्सेप्टेबल एट ऑल, दैट्स नॉट पेरेंट्स पर एक्सेप्टेबल एट चले जाओ तो फॉरेन पेरेंट्स पर जाते हो यार। वो वो मुझे लगता है वो अपने कैरेक्टर से बाहर ही नहीं आई है, जो मूवीज में उनके कैरेक्टर्स होते थे, अ विलन, वो उससे बाहर ही नहीं आई ऑल। है। नहीं, नहीं, मतलब आई डोंट लाइक टू से दैट वर्ड, बट वैम्प जैसी हरकतें कर रही मैम, एग्जैक्टली exactly. मुझे रिस्पेक्टफुली। मुझे नहीं पता उनकी सेलेक्टिव मेमोरी है, क्या प्रॉब्लम है उनके साथ। भाई ने भी तो बोला, शी वो हैज अ सेलेक्टिव मेमोरी। वो करती हैं उसके बाद वो भूल जाती हैं, भूलती हैं या फिर शी इज जस्ट प्लेइंग हर गेम। आई रियली डोंट। हाँ, ऑल्सो अबाउट जीके, जीके बहुत एनालाइज करता है हर चीज, बहुत। राइट? एंड ही इज अ जेंटलमैन एक्चुअली, एंड सही ही लगता इज है द मुझे, ओनली वन हु लेकिन वो मेंटेन्स। कभी कभी ऐसा लगता है सिर्फ एनालाइज ही करता रह जाता है। नहीं, ही इज द ओनली वन हु मेंटेन्स हिज डिग्निटी, वो तो बोल चुके हैं हम लोग वो चीज़ तो। टू बी ऑनेस्ट। तो या ये सारे कंटेस्टेंट है, निशान साहब भी अच्छा ही खेल रहे हैं अपने हिसाब से। वो गैंग ऑफ वासेपुर के ही माहौल में है अभी वो अभी। अभी तक उस वो बाहर नहीं डेफिनेटली आए। है, डेफिनेट बात करते हैं कभी कभी, कभी कभी पीछे से भी बात करते हैं। अमाल से वो अमाल के सामने बोल पाते हैं, ना अमाल उनके सामने बोल पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। तो और मुझे नहीं समझ में आना कौन हु इज गोना विन दिस शो। लेट्स। अभी तो मतलब लिटरली ऑलमोस्ट 1.5 महीना हो गया है और अभी तक समझ में नहीं आता कौन हाँ, जीतेगा। 2 महीना होने वाला है और नहीं समझ में आता। नहीं समझ में आ रहा है सीरियसली। दैट्स रेयर कि ऐसा इतना लंबा वक्फा, इतना लंबा टाइम has been passed and no other contestant is shining out like Siddharth और मुनव्वर मुनव्वर फारूकी, फारूकी, और इवन लास्ट सीजन में ही क्या नाम था, वो क्या नाम उनका, रणवीर, क्या नाम था उसका, जो विवेंद्र सेन और हाँ, उसके साथ था। अविनाश, अरे नो, अविनाश नहीं, नाम भूल रहे हैं सर, रणवीर शायद है। हाँ, करण, करण, हाँ करणवीर। Karan, I didn't like him at all. He was really irritating. But in the hindsight, I could say yeah, he was the deserving winner because उसने जान लगा दी थी पूरी। Vivian would have won this विवियन तो show, सो गया था, but I don't know what happened to him. कि किसी को नहीं पता। हाँ, उसकी वाइफ ने कितनी कोशिश की कि ये लोग दोनों दोगले हैं, इनको छोड़ दो, इंडिविजुअल गेम खेलो। they literally used him, लिटरली वो both तो of them, दिख रहा था। Avinash and what was अविनाश उसका तो name? पीठ पीछे इतना बोलता था, विवियन बहुत के सामने हवा निकल जाती थी उसकी। अविनाश मुझे नहीं समझ में आया क्या है, कैसे दोस्त होते थे। seriously। मतलब अगर दोस्ती की मिसाल दो ही है मेरे हिसाब से, एक तो मनु मनवीर की दोस्ती हम्म। और दूसरा मंडली। तुमने वो सीजन नहीं देखा है, मनु मनवीर के सीजन में वो पूरा सीजन नाम हो गया था मनु मनवीर पे। यहाँ तक कि ये पोर्शन हम लोग बोल चुके हैं, लेकिन आई वांट टू रीइटरेट दिस बिकॉज आई लव व्हाट दे डिड इन दैट सीजन। मतलब उस सीजन में स्वामी ओम और प्रियंका जग्गा जैसे दिग्गज प्लेयर्स भी थे, दोनों को बेइज्जत करके निकाला गया था घर से। बट मन्नू मनवीर की जो इवन स्पेशली मनवीर,
रणवीर गुज्जर जैसा बंदा जो दाढ़ी ना बनवाए, अपने बाप से बात नहीं करता है, जब उसके फादर आए थे तो कहने लगे, मनवीर कहने लगा कि जहाँ तक मुझे याद है कि बहुत साल बाद हम लोग इस तरीके से बात कर रहे हैं, नहीं बात करते हम लोग आपस में। और उसके फादर ने कहा ये बंदे से हम लोग कह कह के थक गए, इसने आज तक शेव नहीं बनवाया और इस शो में दोस्ती के लिए दाढ़ी उड़वा दी, ये बहुत बड़ी बात है। तो ये वो जो दोस्ती थी, और उससे भी बेटर, या आई वुड से ऑन पार, जो मंडली थी, वो लोग क्या खेल रहे थे, सिर्फ एक दूसरे के लिए खेलते थे, भाड़ में जाए पूरा घर। उनका जो गेम था ना, हैट्स ऑफ टू देयर गेम। मतलब उन्होंने सुम्बुल को, जो लिटरली कुछ नहीं कर रही थी, खाना बनाती थी, वो लोग बोलते थे खाना बनाती है अच्छा इसलिए बचा रहे, और हर बार बचाते थे उसे वो लोग, हर बार। और वो ऑलमोस्ट फिनाले तक पहुंच गई थी, ऑलमोस्ट फिनाले वीक तक शायद नहीं पहुंची थी, लेकिन काफी आगे पहुंच गई थी शो में। एंड द वे दे प्लेड, मतलब एमसी स्टैन ज्यादा डिजर्विंग दूसरा बंदा था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन वो बंदा ज्यादा डिजर्विंग था मेरे हिसाब से, हम लोग उसे ही चाह रहे थे। लेकिन ठीक है, मंडली में तो कोई जीता तो हम लोग खुश हो गए कि एमसी स्टैन जीत गया, बट दे वर सो गुड। मतलब जो कैप्टनसी का टास्क था, 60-70% ऑफ द टाइम वही जीतते थे उनकी टीम में से। और उस सीजन में कैप्टन को बड़ा सा रूम दिया गया था जकूजी के साथ, प्राइवेट बाथरूम, प्राइवेट चेंजिंग रूम, सब प्राइवेट था, और ये लोग सब वहीं पड़े रहते थे दिन भर, वहीं सब करते थे, एंजॉय करते थे। और बहुत अच्छा था उनका सीजन, मुझे वो उनकी वजह से वो सीजन हाईलाइट हुआ था कि ज्यादा लड़ाइयाँ नहीं लड़ी, लेकिन उनकी जो दोस्ती जो शाइन करी ना एंड तक, तो एंड में वो भी अच्छा लगा कि दोनों मंडली के लोग खड़े हुए हैं फिनाले में टॉप। सो बिग बॉस इज एंड वाज अ रियली रियली एंटरटेनिंग शो फॉर मी। हम सभी देखते हैं हमारे घर में, मॉम को छोड़ के। कलेश देखते हैं, अपने घर का नहीं, दूसरों के घर अपने घर का कलेश तो देख ही रहे हैं यार। तो इनका देख के लगता है कि अपने घर में इतना कुछ कलेश इतना टाइम है हम लोग के पास कि हम लोग दूसरों के घर का कलेश देखते हैं, वो भी हॉटस्टार का सब्सक्रिप्शन लेकर। एग्जैक्टली। पहले तो इतना फूड पे टाइम फ्री में आता था यार। है। एनीवेज, Yeah, anyways, Big Boss is a good show. इट्स अ गुड शो, देखना देखिए। एंटरटेनिंग। I totally get it why people hate that show. मैं भी कई सारे रियलिटी शोज को हेट करता हूँ जो लोगों को पसंद है। आई डोंट लाइक वाचिंग रियलिटी शोज। साल में सिर्फ एक ही शो है जो मैं शिद्दत से देखता हूँ, बिग बॉस है। इसके अलावा मैंने शायद ही कोई शो देखा है। आई एम नॉट अ सीरीज गाय। आई एम, मतलब मूवीज पसंद प्रेफर करता हूँ मैं। बट या कुछ सीरीज हैं जिनके बारे में मैं लिटरली ऑल एंड आउट जाता हूँ, जैसे कि स्ट्रेंजर थिंग्स। आई एम फॉन्ड ऑफ वाचिंग सीरीज एंड ये ऑल, सीरीज, रियलिटी ये शोज। ड्रामास की बहुत बड़ी है। या बट रियलिटी शोज में तो हमने सिर्फ बिग बॉस देखा, एंड बिकॉज ऑफ हिम ओनली वंस आई गॉट मैरिड एक्चुअली। नाउ शी इज इनिशियली हुक्ड। I was not much interested in all these things. I don't like to see Kalesh and all. Yeah, that's true. In reality also, and it's my real personality. मतलब मुझसे नहीं ये कलेश ना किया जाता ना देखा जाता है. But that is बिग बॉस addicted one. एंटरटेनिंग है। Big Boss Addicted. entertaining है sometimes. Sometimes बहुत boring हो जाता है, irritating हो जाता है. Yeah, so from So Bashir to everyone in the house, yes, they are doing good. they are good. जैसा अपनी अपनी कैपेसिटी से। We are not the ones We are not to judging. We are judge nobody anyone. losers on this platform Yes, giving our opinion for free. So who are we to judge anyone? exactly. But थोड़ा बहुत तानिया को जज कर ले, ये बात नहीं। थोड़ा बहुत, अब little bit. ताजमहल के पीछे कोई और बकलावा खाने के लिए उनकी गाड़ी तो मुड़ती है एयरपोर्ट की तरफ। obviously टच तो करना बनता ही है किसी अरे ऐसा। पता करो ग्वालियर में एयरपोर्ट है, पता करो, मुझे पता नहीं है, मुझे जनरल नॉलेज इंप्रूव करनी पड़ेगी जानने के लिए। अगर आपको पता है ग्वालियर में अगर एयरपोर्ट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। प्लीज, अगर आपने तानिया मित्तल का घर देखा है तो प्लीज बताइएगा जरूर। हाँ। मुझे भी देखना है यार, मुझे भी जाना है उस घर में। वो हाँ, बिग बॉस के गार्डन का जो घर है उतना बड़ा तो उसका गार्डन है। जस्ट इमेजिन घर मस्त कितना बड़ा होगा। तानिया मित्तल एकर्स, बुला लीजिए हम लोग को भी, छोटे से, तुच्छ मनुष्य हम भी को। छोटे कोने में पड़े रहेंगे। बट jokes apart, it's a good show. This season is really good, I would say. Better than the last season, I would say.
तो अच्छा जा रहा है अभी तक, बोर नहीं entertaining होते जा हैं रहा आप, है। कुछ ना कुछ करते रहते हैं उंगलबाजी ये लोग। सब लोग की अपनी पर्सनालिटी है, टैलेंट हाँ, है, सब अपना अपना सबका टैलेंट अपना दिखा रहे हैं, टैलेंट सब दिखाते ही अच्छा है। कर रहे हैं, बट ओवरऑल अभी कोई विनर दिख नहीं रहा है। हाँ, जैसे अमाल का टैलेंट है सिंगिंग, बहुत अच्छा तो गाता है उसका यार, वो बहुत अच्छा लगता है, वो जो टैलेंटेड है यार, एंड में एक अपना वो गाना गाता है, वो एंडिंग अच्छी लगती बहुत है, अच्छी बस एंड अमान एंडिंग थोड़ी होती है। स्पाइन उगा ले। हाँ। एक अमाल शाहबाज का जो एक हिलेरियस है, मतलब जोक्स, वो भी अच्छा। अब मुझे नहीं पता वो टैलेंट है कि या ये भी वो फेक वो है, नो आइडिया। बकचोद इज द वर्ड आई वुड से आई डोंट नो। बस। हाँ, प्रणीत का जो जिस तरीके से वो कॉमेडी करता है, प्रणीत इज दैट टैलेंटेड, इज गुड, प्रणीत इज टैलेंटेड पर्सन। और सभी में अच्छे, सभी मृदुल में कुछ ना कुछ भी जब टैलेंट है। बोलता है तो बहुत अच्छा लगता है, तो मतलब वो फ्लो में आता है जब ना वो फ्लो बोलने में पर, आता है तो तो वो मजा आ बोलते जाता चला है। जाता है, और फिर वो कभी कभी एक इक्का दुक्का ही हुआ है, लेकिन जब भी हुआ है मजा आया। वो एक्चुअली मुझे फील होता है कि वो जो है छोटा भी है, हाँ, छोटा भी है, और जो कंट्रोवर्सीज है उसको अवॉइड करने की कोशिश सिंपल करता है। आदमी है, वो कॉन्फ्लिक्ट्स जो है अवॉइड करना चाहता है। फ्री फंड की लड़ाइयों में नहीं Exactly. घुसता है। He doesn't want to involve in all these things. But the moment he opens his mouth, it's amazing actually. Totally, जैसे वो बोलना शुरू करता है ना, 2 बार बोला है सब लेकिन जब भी बोला स्पीचलेस है हो अच्छा जाते बोला है। हैं। 2 Exactly. बार उसका वो बशीर, बशीर फ्रंट प्लेयर है, हाँ, फ्रंट प्लेयर बट है। विनर में उसे भी अभी अभी तक उसने ऐसा नहीं किया कि मैं बोलूं ही इज द विनर। तब मुझे ऐसा नहीं लगता है, हाँ, लेकिन उसके हार्ड फैंस हैं, वर्किंग है, डेडिकेटेड है बहुत डेडिकेशन है, ज्यादा। टास्क में जान एक लगा देता है, बशीर और एक अभिषेक, दोनों टास्क में जान बहुत लगा देते हैं दोनों। डेडिकेटेड पर्सन है, मतलब वो लोग दोनों। घर में हैं तो उन्हें वो लोग फुल ऑन दे रहे हैं, एग्जैक्टली। आई वुड से दैट। नेहल मुझे शुरू में अच्छी लगी थी, अब पता नहीं उसका क्या हो गया, वो सिर्फ तानिया मित्तल के पीछे 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 घूम रही है। शी इज ऑब्सेस्ड हाँ, एक्चुअली। वो बहुत गलत है, और उसके अलावा उसके पास कोई टॉपिक ही नहीं है बात करने तान्या को। मित्तल को इतना उठाने की जरूरत नहीं, क्या जरूरत है इतना किसी को वो भाव ऑलरेडी देने इतने की? ऊंचे पायदान पर है। एग्जैक्टली। आप उसी के पीछे पीछे घूम रहे हो, उसी के लिए बातें कर रहे हो, क्यों इतना भाव? इवन जो भी वाइल्ड कार्ड की एंट्री, मुझे लगता है वो भी उसका, उसके बारे में भी यही बोला जा रहा है, इतना भाव क्यों दिया जा रहा तानिया मित्तल को? एग्जैक्टली माय पॉइंट। मुझे लगा जितना भाव देगी वो उतना आगे जाएगी। छोड़ो उनकी बात ही नहीं करते। ऑल्सो ऑल्सो बिग बॉस, बस फिलहाल तो यही है मेरे हिसाब से ओपिनियन। One thing I want to say कि we are planning to do this, to give the weekly report on Big Boss, but उसके लिए you have to tell us, should we, लाइक, हाँ, शेयर, share and सब्सक्राइब, subscribe, कमेंट, comment and tell us कि should we continue with this or हम लोग should we not? सोच रहे हैं कि हाँ, हर हफ्ते बिग बॉस का वीकली रन डाउन करें, हाँ, कि इस वीक क्या हुआ, weekly वीक के report, एंड में हम हाँ, बताएं और डिस्कस करें हमारे थॉट्स उस वीक के बारे में, कौन उस वीक में अच्छा था, किसने बुरा किया, किसने अच्छा किया, कौन आई वुड से कि इम्प्रूव हुआ है, कौन डिग्रेड हुआ है, और कौन बदतमीज था, हम सब डिस्कस करना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमें सपोर्ट करना होगा। हम छोटे से कुछ भी नहीं है, हमारे 30-40 व्यूज आए थे लास्ट पे, last और वी आर episode प्राउड में, ऑफ दैट कि यार मुझे तो 10-5 क्यों भी अल्हम्दुलिल्लाह। तीस और चालीस 30-40 आ गए। सो प्लीज टेल अस इफ यू वांट अस टू this कंटिन्यू is विद our दिस। second episode, and if you या are interested to know more, then you should watch the first episode, जिसमें हम लोगों ने अपना इंट्रोडक्शन दिया है, अपना मेन फोकस बताया कि हम लोग का मेन क्या है इस एपिसोड्स के पीछे, इंट्रोडक्शन में क्या है, वो आप जरूर देखिएगा तो उससे आपको पता चल जाएगा। और हमसे जो भी गलतियां हुई पॉइंट आउट कीजिए, प्लीज अवॉइड हम लोग करें, हाँ, इम्प्रूव करें। पॉइंट आउट करिए पर इन अ डिसेंट हाँ, वे। हम लोग कहाँ इम्प्रूव कर सकते हैं वो आप हमें बताइए, कहाँ क्या चीज़ कमी है वो बताइए, क्योंकि हम ये सीख रही हैं एडिटिंग, अपने हिसाब से हम लोग एडिटिंग कर रहे हैं यस, खुद से, सीख कर। हमारे पास कोई एडिटर नहीं है, होता तो आप पहले वीडियो देख के समझ जाएंगे कि कितने एमेच्योर हैं हम लोग इस चीज़ में, बट हम लोग खुद से कर रहे हैं जो भी कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि अपने हमारे ओपिनियन शेयर करें। और अगर आपने अग्री किया हमारे साथ तो हम हफ्ते में 2 पॉडकास्ट एग्जैक्टली, करेंगे। एक तो यही होगा बिग बॉस से रिलेटेड वीकली रनडाउन, और एक रैंडम टॉपिक। रैंडम टॉपिक, और you can also suggest us some random topics if you want. एग्जैक्टली So व्हाट यू we will वांट अस टू choose, डिस्कस हाँ, एज अ कपल। हमारे इंटरेस्ट हैरी पॉटर में है, हमारा इंटरेस्ट स्ट्रेंजर थिंग्स में है, हमारा इंटरेस्ट सुपर हीरो मूवीज में है, हमारा इंटरेस्ट म्यूजिक में है। आप बताइए। एंटरटेनमेंट अपार्ट अगर कुछ और भी आप हाँ, सीरियस टॉपिक डिस्कस करना चाहते हैं, पॉलिटिक्स रिलीजन छोड़ के। हाँ प्लीज
अगर उसके बारे में आप चाहते हैं कि लोगों को पता चले, लोग उस चीज के बारे में बात करें, तो प्लीज जरूर Sure, बताइएगा। sure, sure. अगर अप्रोप्रिएट होगा तो वी विल डेफिनेटली। Definitely. So please tell us if you want us to make Yes. more videos on Big Boss. Uh, मतलब मैं मनु पंजाबी को फॉलो करता हूँ जिनका यूट्यूब चैनल है और वो डेली वीडियोस बनाते हैं। मैं डेली तो नहीं बना सकता बिकॉज ये तो उनका काम ही है, मेरा ये काम नहीं है, लेकिन आई वुड लव टू डू दिस एज माई जॉब। फिलहाल आप बताइए, हम वीकली रन डाउन जरूर करेंगे Yes. अगर इस वीडियो को आपने प्यार दिया अपना। एंड यस, So it's time to say goodbye. Okay. Sayonara. hasta la vista. Bye bye. And don't Take care. forget to subscribe us Also follow us on Instagram. and follow us. In the description you'll find Instagram link too. Right? Follow us on Instagram. We'll post shorts and reels there. And watch our shorts, watch our videos again and again. Tell us so we can improve. And take care. Bye. Take care.